Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video we are going to complete our first lesson. Nowadays we are talking about the history and political science of 10th standard. Okay, and we are dealing with the first lesson, that is historiography, development in the West. Okay, so students, let's start the second part. In earlier video we already talk about what is historiography, what is the research method, who is known as the historian, about the Herodotus, okay, archaeology, then the what is archaeological science, etc. So students, let's start the remaining part. Development of scientific perspectives in Europe and historiography. Till the 19th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy. जब तक 18th century आए, Europe has achieved remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars by then had come to believe, जैसे हमारे इंडियन ऑथर्स है, थिंकर्स है, दैट इज़ फिलोसॉफिकल थिंग्स वो लिखते हैं, एज लाइक दैट देर इज़ अ development in western part and the Europe we are now going to start. So scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific methods. तो जो scholars है, जो philosophy and science की स्टडी कर रहे हैं, scholars then believe that possibility of studying the social and historical truth by applying the scientific method. Now the philosophical discussion focus more and more on the objectivity in history and the historiography. अभी जो इन मॉडर्न इरा में जो बात होने लगी वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पर रहने लगा टू थिंक अबाउट दैट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री एंड द historiography. Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. और 19th century में ज़्यादातर यूरोपियन यूनिवर्सिटी में ये वो इंटरेस्टेड रही कि philosophical discourse revolving around the divine phenomena. However, gradually this scenario began to change in 1737 CE. The Göttingen University was founded in Germany. This university for the first time had an independent department of history. देखो, in 1737 CE में पहली बार Göttingen University was founded in a Germany. तो जर्मनी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी फाउंड हो गई 1737 CE में. दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. पहली बार इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक स्पेशल डिपार्टमेंट हिस्ट्री का बनवाया. लैटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज also other university also started the centers of historical studies. Okay, so now let's learn about the notable scholars. So who are the notable scholars? Here are some contribution of many scholars are the important in the development of historiography. Let's have a look at the contribution of few notable scholars. So here the notable scholar में सबसे पहले हम बात करेंगे रेन डेस्कार्टेस और डेकार्टे. We pronounce both. So the Rene Descartes or Descartes, born in 1596 and died in 1650, was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. रेन डेकार्टे जो पहले पर्सन हैं, पहले स्कॉलर हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया, ज़ोर दिया, वो इस बात पे ज़ोर देते हैं कि किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को रिलायबिलिटी के तौर पर वेरीफाई करना चाहिए, रिलायबिलिटी के बेस पे वेरीफाई करना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामाइन करना चाहिए देम, उन्हें क्रिटिकली एग्जामाइन करके फिर उन्हें प्रूव करना चाहिए. अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, कुछ रूल्स उन्होंने अपनी बुक में बताए हैं. एंड द बुक नेम और द टाइटल ऑफ द बुक वो है
Discourse on the method. The following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for true till all ground of doubt are excluded. और रेने देकार्ते कहते हैं किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को जब हम वेरीफाई करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी चेक करें, उसे क्रिटिकली एग्जामाइन किया जाए। और ये सब रूल्स रेगुलेशन उन्होंने अपने फेमस बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड में बताए हैं और ये आगे जाके रिसर्च मेथड में बहुत इम्पैक्टिव साबित हुए हैं। नेवर एक्सेप्ट, कोई भी चीज़ को इस तरह से तुम एक्सेप्ट मत करो जब तक ट्रूली टिल ऑल ग्राउंड आउट आपके एक्सक्लूडेड हो जाए। ओके, देन उसके बाद आते हैं वोल्टेयर 1694 to 1778। Voltaire's original name was Francisco Mary Areto. He was a French, वो फ्रेंच है। he opined that along with the objective truth and chronological of historical event considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc. तो वॉल्टेयर का कहना था कि हिस्ट्री तो क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल इवेंट का स्टडी कर ही रही है, उसके साथ साथ उस समय के जब हम हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे, जिस इरा की हम बात करें, जिस इरा के बारे में हम लर्न कर रहे, उस समय का सोशल कंडीशन क्या था, सोशल ट्रेडिशन क्या थे, ट्रेड कैसा था, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, एग्रीकल्चर क्या था, इन सब बातों का भी स्टडी होना चाहिए। एंड द थिंग इज प्रपोज बाय द वॉल्टेयर, इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी। ये सब चीज़ें में बहुत मायने रखती है, ऐसा वॉल्टेयर का कहना था। इट गिव्स द राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ it is important for history writing. Thus, it is said that Voltaire was the founder of that is modern historiography. तो वॉल्टियर को क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? सो वॉल्टियर इट इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। उसके बाद आते हैं जॉर्ज वेलहेम फ्रेडरिक हेगेल 1770 to 1831। हेगेल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। तो जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हेगेल जो थे वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। वो जोर देते हैं, ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। कोई भी हिस्टोरिकल बातें, कोई भी हिस्टोरिकल जो रियलिटी हम बता रहे, इट शुड बी प्रेजेंटेड, वो इस तरह से प्रेजेंटेड होनी चाहिए इन अ लॉजिकल मैनर, विद द लॉजिकल मैनर। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth। और जैसे जैसे हिस्ट्री में समझो किसी ने पहले ये चीज़ बताई थी पर बाद में और उसके सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, सोर्सेस मिलते हैं, तो हिस्ट्री में उसे शामिल करना चाहिए, ऐड करना चाहिए और नई सिरे से उसे लिखना चाहिए। सो विथ हेगेल्स फिलोसॉफी मेनी स्कॉलर्स वेर कन्विंस्ड दैट historical method were not of lesser quality though they differed from the scientific method। तो बहुत सारे फिलोसोफर का ये कहना था कि हिस्ट्री भी भाई साइंस से कम नहीं है, हिस्ट्री भी साइंटिफिक मेथड से कम नहीं है। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल जो है, हेगेल के लेक्चर और आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं एक बुक के टाइटल के अंडर, और उस बुक का टाइटल है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। सो हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज अ वेल नोन। ओके, सो वन मोर और गुड टू नोन टू यू दैट बिफोर दैट another philosopher, another person, Leopold von Ranke, historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University। देखो, लियोपोल्ड रैंके जो है 1795 to 1886 उनका टाइम पीरियड है। 19th सेंचुरी में उनका ग्रेट इम्पैक्ट था। लियोपोल्ड रैंके एक बर्लिन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ही स्पोक अबाउट द उन्होंने बात की है क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ही पुट एम्फसिस ऑन द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और वो बिलीव करते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं, वो एम्फसिस करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से गैदर हो रही है, पास्ट से गैदर हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे बेस हो।
He also stated that all type of document associated with the historical event need to examine with the great care. So फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं, आगे बात करते हैं जो लेपर्ड रेंके हैं. ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव narrative of history. Collection of his articles is published in 2 books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History. ओके, सो उन्होंने 2 बुक लिखे हैं. उसके बाद हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की. कार्ल मार्क्स विच वॉज कम्स इन 1818 to 1883. In the latter half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not a abstract ideas. कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री कोई abstract निर्जीव सी वस्तु नहीं है. इट वॉज अबाउट द लिविंग पीपल. हिस्ट्री जो है जीते जागते ह्यूमन बींग्स के बारे में, जिंदा लोगों के बारे में. ह्यूमन रिलेशंस आर शेप्ड by the fundamental need of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs, the accessibility of those means to different strata of the society. Okay, वो इनइक्वालिटी की बात करते हैं, वो क्लासेस की बात करते हैं. कार्ल मार्क्स की थेरी भी फेमस है. कार्ल मार्क्स के बुक्स भी है. दास कैपिटल इज़ अ वेरी फेमस. He talk about the division of the society into classes leading to the struggle class people, upper class people. According to the Marx, human history is the history of class struggle. हिस्ट्री दूसरा कुछ नहीं है तो क्लास स्ट्रगल है. कैसे मीडियम क्लास के लोग स्ट्रगल करते हैं एंड द मीन ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिकली, मोनोपोली, exploitation, these are all about the history. So the Das Capital, a treatise written by him, is the most referred book to all over the world and the name of the book is Das Capital. उसके बाद बात करते हैं एनल स्कूल की. एट द onset of the 20th century a new school of historiography arose. जैसे ही हम बात करते हैं 20th century की, एक न्यू स्कूल अराउज होती है फ्रांस में which is known as Annales School, जिसका नाम है एनल स्कूल. एनल स्कूल gave a new direction to history. और एनल स्कूल जो फ्रेंच में शुरू हुआ उसने एक हिस्ट्री को न्यू डायरेक्शन दिया. इट वॉज रिकग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग, ग्रेट लीडर एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, बट आल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, etc. So the social division and their collective psychology. In the historical time, the Annal School was started. French historian. So this is how Annal School, which is talk about that recognize now the history is not only about the political events. Annal School कहती है कि हिस्ट्री कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है. किंग्स, ग्रेट लीडर एंड अकॉर्डिंगली टू पॉलिटिक्स, इतनी ही बात हिस्ट्री में नहीं होती है. सो बट आल्सो इट इज़ द क्लाइमेट, लोकल पीपल, उनका वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, वो क्या खाते थे, उनकी खेती, उनका व्यापार, उनकी टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में हिस्ट्री स्टडी करता है. हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजा लीडर से लिमिटेड नहीं रहती है. ये जो है, ये जो पर्सपेक्टिव था, ये जो व्यू था, वो एनल स्कूल ने स्टार्ट किया विच वॉज बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन. उसके बाद शुरू होता है फ्रेंच हिस्टोरियोग्राफी. फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द that structuring of the history from the perspective of women. Now you should know about the feminist, which is talk about the women, and the writing of the Simone de Beauvoir help is establish the fundamental of feminism. Simone de Beauvoir जो है वो बात करती है, she was a French, she was a feminist, she talk about the women, how the women are suffering. So historiography emphasizes not only the inclusion of women in history but also the rethinking of male dominative perspective. इस मेल डोमिनेटिव सोसाइटी में विमेन की कंडीशन की भी बात की जाती है विच इज़ नोन एज अ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, वहाँ की विमेन की कंडीशन कैसी थी. हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 विमेन वेयर पोर्ट्रेड एज ए इंडिपेंडेंट सोशल क्लास. जैसे हम पुराने एंशिएंट पीरियड की विदुषी की बात करते हैं, मैत्री हो, गार्गी हो, है ना,
उसके बाद आते हैं मिशेल फूको, दैट इज़ 1926 to 1984. द फ्रेंच हिस्टोरियन है मिशेल फूको ऑफ द 20th century. मिशेल फूको ब्रॉड फोर्थ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. जो फूको हैं उन्हें चौथा और एक कॉन्सेप्ट लाया हिस्टोरियोग्राफी में. ही इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज argued that prevailing practice of arranging historical event in chronological order, it is not right. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempt to explain various transitions. Okay, so the Foucault बात करते हैं transition in history is more important. He call his method as archaeology of knowledge. वो अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहते हैं. उनका कहना है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आर्ग्यूड दैट प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन chronological order, it is not right. He drew attention about the another fact. Foucault subjected that so far unacknowledged area by historian such as the psychological disorder, science of medicine, prison, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, उन सब की वो बात करते हैं. दस द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग. राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, जैसे लिटरेचर आता है, साहित्य, आर्किटेक्चर आता है, स्कल्पचर आता है. तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सिर्फ क्रोनोलॉजिकल आर्डर से डील नहीं रहता है. हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है. हिस्ट्री इज़ डील विद द एवरीथिंग. वहाँ का सॉन्ग कैसा था, वहाँ पे डांस, ड्रामा, खाना, चीज़ें, डिशेस कौन सी फेमस थी, एक्सेट्रा, विच इज़ पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर, विच इज़ ऑल डील विद द historiography. And this is how the first lesson we have completed. Guys, do a homework, try to solve the question and answer, or in another video we will talk about how to solve the question answers. We go with the detailed analysis of each and every question. If you are liking my video, if you want that I want more and more video on history and English of the 10th standard for the Maharashtra board student, then like, share and subscribe my channel. In the next video we come soon back and talk about the question answer as well as the second lesson, that historiography and the Indian tradition. Thank you.